Next topic, fins. Unlike stone or shell that are found naturally, means some of the stones or shells you can found naturally, and fins is a material that is artificially produced. A gum was used to shape गम की हेल्प से, ठीक है, दे आर गिविंग अ शेप ऑफ सेंट or powdered quints into an object. Powdered quints means a shiny powder, okay. The objects were then glazed resulting in a shiny glassy surface. उसे एक shiny glassy surface में convert किया जाता है. The color of the glaze were usually, what is the color? Blue and sea green. Fins was used to make a, किन क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? Beads, bangles, earring and tiny vessels. Next topic, in search of raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood and ores of metals, or produced by farmers or herders. Some of the raw materials you can see it was found naturally, ठीक है, आपको naturally मिल जाएंगे, like wood, ores, ठीक है, और कुछ लोग भी उसे प्रोड्यूस करते हैं, लाइक फार्मर्स एंड हर्डर्स. दीज आर देन प्रोसीड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड, और उन्हीं चीज़ों से मे बी इट वॉज फाउंड नेचुरली और बाय ह्यूमन मेड, लेकिन उन चीज़ों से फिर क्या होता है, कोई भी एक फिनिश गुड बनाया जाता है, कोई भी एक उसकी चीज़ बनाई जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल, कॉटन. जैसे आप कॉटन का एग्जाम्पल ले लीजिए. इट वॉज प्रोड्यूस बाय अ फार्मर्स, ठीक है, इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोड्यूस टू मेक क्लोथ. चाहे उस क्लोथ को फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो फिनिश गुड में कब कन्वर्ट हो रहा है? बाय मेकिंग अ क्लोथ. While some of the raw materials that are Hadappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones have to be brought from distant places. What they were saying, some of the raw materials which has been found in the Hadappan site, ठीक है, they make a different items like a copper, tin, gold and precious stones, ठीक है, from a distant places. The Hadappans probably got copper from the present day Rajasthan. Today, if we talk about the present day, they are bringing the copper from where? From Rajasthan. And even from Onam in West Asia, tin was mixed with copper to produce bronze, and many have been brought from present day Afghanistan and Iran. Means what they were talking about, they were saying कि हड़प्पन जो भी चीज़ें बना रहा था वो अलग अलग जगहों से वो चीज़ें मंगाता था, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड. जैसे कि राजस्थान, ठीक है, वेस्ट एशिया और अफगानिस्तान एंड ईरान. गोल्ड कुड हैव बीन कम ऑल द वे फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका. आज गोल्ड आपको कहाँ से मिल जाता है? कर्नाटका से, ठीक है, एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. और जो भी आपको प्रीशियस स्टोन आपको मिलेंगे आज, वो कहाँ मिलते हैं? गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. Now next topic, food for people in the cities, means where the people eating their food in the city. While many people lived in the city, other living in the countryside grow crops and reared animals. Means those they were living in the city, what they were doing, they were growing crops and rearing animals. These farmers and herders supplied fruit to क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी. और यही फार्मर्स और हर्डर्स क्या करते थे? दे आर सप्लाइंग देयर फूड दिया करते थे किनको? क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी. वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रो वीट. क्या क्या उगाते थे हड़प्पन्स में? लाइक वीट, बाले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लाइन सीड, ठीक है, एंड मस्टर्ड. A new tool, the plug, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. एक नया टूल बनाया गया जिसे प्लग बोला जाता है. वो किस लिए यूज़ होता है? ज़मीन खोदने के लिए, ताकि वो ज़मीन में खोद सकें एंड उसमें क्या कर सकें? सीड डाल के उसमें प्लांटेशन कर सकें. वाइल रियल प्लग विच वॉज प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, और ये प्लग किससे बनाया जाता था? मेनली ऑफ वुड, हैव नॉट सर्वाइव्ड. Toy models have been found.
मीन्स वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता था, ठीक है, क्योंकि वो एक टॉय के मॉडल का बनाया हुआ था. एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, और उस रीजन में, उस जगह पर ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं होती थी. सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड, इसलिए कुछ इरीगेशंस वहाँ पर यूज़ करी जाती थी. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वॉज ग्रोइंग. मे बी वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती थी तो क्या करते थे, दे विल स्टोर द वाटर, वाटर को स्टोर किया जाता था, और जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी फॉर द फार्मिंग, दे वर यूजिंग दैट वाटर इन द फील्ड टू ग्रो देयर क्रॉप्स. द हड़प्पन्स रियर्ड, क्या क्या रेयरिंग करते थे, लाइक कैटल, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlement, means you can see the water and pastures available there. Okay, however, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. और summer side में मीन्स जब समर सीजन होता था, व्हाट दे विल डू, दे विल हर्ड देयर एनिमल्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर उन्हें लेके जाया करते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, लाइक क्या क्या कलेक्ट किया करते थे फ्रूट्स में, लाइक बेर, caught fish, hunted wild animals like the antelopes. Next topic, a closer look. Hadappan towns in Gujarat. The city of Dholavira was located on Khadir Bait, spilled called Bet, in the run of Kuch, where there were fresh water and fertile soil. If you can see in the map, Dholavira was located where Khadir Bait, और उसे क्या बोला जाता है, क्या स्पेल किया जाता है, बेल्ट, जो कहाँ है, रन ऑफ कुछ में. वेयर यू कैन सी द फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, आपको वहाँ पानी और फर्टाइल सॉइल दिखाई देगी. अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एज यू हैव सीन द हड़प्पन वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेस्ट एंड ईस्ट साइड. धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, लेकिन धोलावीरा को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंस थ्रू गेट वे, मीन्स दे हैव सराउंडेड विद अ गेट, ठीक है, विद अ गेट, और यू कैन से गेट वे, ठीक है, जो किससे सराउंड किया गया था, स्टोन वॉल, यानी कि पत्थर से वॉल बनाई गई थी. देयर वॉज अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और वहाँ पर आपको बहुत बड़ा एरिया दिखाई देगा. वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर क्या होती थी, पब्लिक सेरेमनी, यानी कि कोई भी सेरेमनी, कोई भी ऐसा मिशन या कोई भी सभा बिठानी होती थी तो दे विल डू इन दैट प्लेस. अदर फाइंड्स include large letters of the Hadappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. Or if you can see in the Hadappan site, many of the letters or a script has been carved of white stone से बना लिखी जाती थी, perhaps inlaid in wood also. This is a unique find as generally Hadappan writing has been found on small objects such as seals, and you can see the find means unique find also where in Hadappa side which was written on small object, छोटे छोटे objects में लिखा जाता था, such as seals. The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close of the Gulf of Kambat. Means what they were saying, if we are talking about the Lothal city, okay, उसके बिसाइड में क्या था, साबरमती थी, जो कहाँ है, गुजरात, क्लोज ऑफ द किसके पास, गल्फ ऑफ कंबक. इट वॉज सिचुएटेड नियर area where raw materials such as semi-precious stones were easily available. वहाँ उसके आसपास आपको बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, जैसे कि लाइक सेमी प्रीशियस स्टोन्स आपको वहाँ ईजिली मिल जाएंगे. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेटअप फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन. ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई मिलेंगी जो किससे बनी हैं, लाइक स्टोन, शेल एंड मेटल्स. देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी. As you can see the storehouse also, many seals and sealings, the impression of seal on clay
were found in the storehouse and you can see the seals and sealing also. जैसे कि क्या होता है, सील जो बनाई जाती है क्ले में, ठीक है, वर फाउंड इन द स्टोर हाउसेज में आपको वो देखने को मिल जाएंगी. A dockyard and Lothal, this huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from the sea and through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. As in this picture you can see this is a river or a dockyard जहाँ पर क्या होते हैं, ships वगैरह आती हैं जिनसे सामान लोड होके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. Building that was found here was probably a workshop for making. जो बिल्डिंग बनाई जाती थी they were probably used for the workshop for making क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए, like pieces of stone, half made of beads, tools for bead making and finished beads have all been done found here. ये सारी ही चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती थी. Topic is seals and sealing. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another place. Means seal have been used generally for a stamping bags, bag और पैकेट को स्टैम्प करने के लिए, for containing goods, एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स भेजे जाते थे, ठीक है, उन्हें स्टैम्प करने के लिए. आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइट अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट. उनकी जो बैग जब बंद कर दिया जाता था टाइटली, ठीक है, तो उसके ऊपर एक वेट क्ले लगाई जाती थी उसके नॉट पर. एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और वो सील को क्या कर दिया जाता था, प्रेस कर दिया जाता था. द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज अ सीलिंग. और उसे प्रेस करते वक्त जो भी हमारी फिंगर्स की इम्प्रेशन होते थे जो सील में आ जाते थे, दैट वी कॉल्ड सीलिंग. If the sealing was intact, one could be sure that the goods have arrived safely. और जब उसमें सीलिंग करी जाती थी, then they were sure that the goods were arrived safely, वहाँ पहुँच जाएंगे. Seals are used even today. Find out what they are used for. Sealing आज भी यूज़ करी जाती है, but you just have to find out what they are यूज फॉर. आज वो किन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड. अराउंड 3,900 years ago we find the beginning of a major change. As you have seen, the change is around 3,900 years ago. People stopped living in many of the cities. आज लोगों ने वहाँ पर रहना बंद कर दिया बहुत सारी जगहों में. राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज. और ये सारी ही चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं. रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. ठीक है, आजकल बहुत सारी चीज़ें दूर दूर जगहों से लाना या ले जाना बंद कर दिया है, ठीक है, या कम हो गई हैं, वी कैन से. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets. As you have seen, the streets drainage and drainage system broke down. आज वो systems बंद हो गए हैं. And new less impressive houses were built even over the street. आज आपको street side में भी even आपको ऐसे houses दिखने बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं. Why did all this happen? We are not sure. ये सब क्यों हो रहा है, क्या हम श्योर नहीं हैं. Some scholars suggest that the rivers dried up. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि rivers जो हैं वो ड्राइड हो गई हैं. मे बी कुछ लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं. This could have happened because fuel was required for making bricks. और इसलिए भी शायद क्यों, क्योंकि जो ब्रिक्स हैं उसको बनाने के लिए, बेक्ड ब्रिक्स बनाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, ठीक है. एंड फॉर मेल्टिंग कॉपर ओर्स, और कॉपर ओर्स को भी मेल्ट करने की ज़रूरत होती है. बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शिप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. एंड इनके अलावा मीन्स जो ग्रेजिंग होती है एनिमल्स की, लाइक कैटल, शिप एंड गोट, वो भी वो क्या कर रहे हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग द ग्रीन कवर. मतलब वो खा ले रहे हैं तो क्या हो रही है, वो चीज़ें भी डिस्ट्रॉयड हो रही हैं धीरे धीरे.
इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ एरियाज में फ्लड्स आने की वजह से, बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ दीज सिटीज़। लेकिन हम किसी भी चीज़ को एक रीज़न नहीं मान सकते कि ये सब चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, या सिटीज़ ये धीरे धीरे क्यों ख़त्म हो रही हैं, या इस तरीके से हाउसेस बनना क्यों बंद हो रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप would have had an effect in only some areas. फ्लड एंड जो नदियों का सूखना है वो हम एक रीज़न मान सकते हैं कुछ एरियाज़ में इन सब चीज़ों का होने की वजह से, यानी कि मतलब फ्लड्स और रिवर सूखने की वजह से कुछ जगहों पर इसका इफ़ेक्ट होता होगा या होता है। It appears as if the rulers lost control, means it appears if the rulers were losing their control in any cases the effect of the change are quite clear हो जाएगा। sites in सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे आज कहाँ है वो, पाकिस्तान में है, जहाँ पर सिंध और पंजाब साइड अगर हम लें, जो आज वेयर इट इज़ इन पंजाब इन पाकिस्तान साइड, वर abundant while many peoples moved into newer smaller settlement to the east and the south। क्या हो रहा है, कुछ लोग वहाँ से क्या कर रहे हैं, अपना एक जगह से नई जगह पे सेटल हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर साइड, ईस्ट साइड एंड द साउथ साइड। न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड about 1400 years later, means न्यू सिटीज़ वर इमर्ज, न्यू सिटी इमर्ज हो रही हैं, कब हुई थी, 14 years later, 1400 साल बाद। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 and 8, और इसके बारे में आप ब्रीफली कहाँ पर पढ़ेंगे, इन चैप्टर 5 and 8। नाउ एल्सवेयर फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, आपको एटलस में आपको इजिप्ट दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ ड्राई डेजर्ट, जैसा कि आपको पता है इजिप्ट क्या है, ड्राई डेजर्ट है, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नील। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, आपको जैसे कि पता है अराउंड 5000 ईयर्स अगो जो वहाँ पर किंग्स थे वो रूल किया करते थे, शासन किया करते थे। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गेट, जो अपनी आर्मीज़ को राजा लोग क्या करते थे, भेजा करते थे अलग अलग जगहों में, जहाँ से वो क्या लेकर आते थे, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड, और क्या बनाते थे वो, टॉम्स बनाते थे जिसे पिरामिड्स भी बोला जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। ओके, when they died the bodies of king were preserved and buried in these pyramid, और जब राजा लोगों की डेथ हुई तो they have buried, उनको कहाँ दफनाया गया, जो उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए थे। These carefully preserved bodies are known as mummies, और इन पिरामिड्स मतलब जो जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था उनकी बॉडीज़ को, उन्हें ममीज़ बोला जाता है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो ब्यूरिड विद देम, और उनके साथ साथ ऐसी बहुत सारी उनकी प्रीशियस चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी। दीज इंक्लूडेड, उनमें क्या क्या होता था, जैसे कि फूड, ड्रिंक्स, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स एंड एनिमल्स। समटाइम इवन सर्विंग मैन एंड वीमेन वर ब्यूरिड विद द रूलर्स, और कभी कभी क्या होता था, उनको सर्व करने के लिए, ठीक है, विद द टू हेल्प देम दे आर सर्विंग मैन एंड वुमेन, उनके साथ क्या क्या, उनकी जो बॉडी है उनके साथ क्या क्या दफनाया जाता था, मैन एंड वीमेन ऑल्सो। These are amongst the most elaborate burial known as world history, and means these are the elaborate burial होती थी जो पूरे हिस्ट्री में जानी जाती हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में। Do you think kings would have needed these things after that? क्या आपको लगता है कि राजा को अपनी डेथ के बाद इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? This is the question arises, and with this we have completed this whole chapter. I hope you have understood this chapter nicely, and we will meet in our next video with our next chapter. Till then, bye bye.